call is now being recorded. Good morning, everyone. In the last class, I did talk about the various formulas related to trigonometry. So, quickly go through the following formulas popping up on your screen. Just a quick recall. For angle sum formulas, sine A plus B, cos A plus B, tan A plus B, and cot X plus Y or A plus B. Similarly, for the negative, sine A minus B, cos A minus B, tan A minus B, and cot A minus B. So we already did talk about the following formulas, followed by these four set of formulas altogether. Quickly have a look at these formulas again. Two sine A cos B, 2 cos A sin B, and then 2 cos A cos B, an important change के साथ 2 sin A sin B. Followed by the set of following four formulas: sin A plus sin B, sin A minus sin B, cos A plus cos B, cos A minus cos B. Cos A minus cos B में नेगेटिव साइन आ जाता है बाहर, so please make a note of that. Then the following three formulas: sin 2A, cos 2A, tan 2A, double angle formulas. cos 2A के चार अलग अलग formulas हैं, need based हैं, question के accordingly we will decide which formula we need to consider. tan 2A, 2 tan A upon 1 minus tan square A, और cos 2A के फॉर्मूला से दो डिडक्शंस हुए थे, वो ये रहे, डायरेक्टली sin A and cos A. Followed by the triple angle formulas for sin 3A, cos 3A, and tan 3A. So let's now move on to the NCERT exercise 3.3. We already discussed up to first 13 questions. चेक इट आउट. अब आपको जैसे ये रिजल्ट प्रूव करना है 14 एंड 15. 14 तो सिंपल है, आइडिया लग जाएगा. आप इसे और इसे पहले कंबाइन करेंगे एंड देन अप्लाई दी फॉर्मूला. लेट मी कंसीडर 15th क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ अब एक टेक्निक को आपको समझना है ध्यान से. व्हेन आई कंसीडर LHS, इट इज cot 4x and into sin 5x plus sin 3x. As we have a clear hint, ब्रैकेट दिया भी हुआ है sin A plus sin B. तो सोचिए फॉर्मूला 2 sin A plus B by 2 into sin A minus B by 2. A minus B by 2, right. So 2 चलो ये बाहर आ गया, फिर cot 4x और sin में बचेगा 4x एंड cos में आ जाएगा ओनली x. नोट केयरफुली, cot 4x है, मैं इसे cos 4x अपॉन sin 4x लिख सकता था इस cot को, बाकी एज इट इज. द बेनिफिट इज sin 4x gets cancelled out and we left with 2 cos 4x into cos x. But it is not matching with my RHS. So what I will do, let me call this as equation number 1. And now I will focus on RHS separately, which is cot x into sin 5x minus sin 3x.
follow the usual method, cot x as it is, sin a minus sin b, और इसका डायरेक्ट फार्मूला, अब cos पहले आ जाता है, cos a plus b by 2 into sin a minus b by 2. yes, into sin a minus b by 2. अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज फॉर्मूलाज याद करिए या एटलीस्ट अभी सामने हो ताकि आपको पता चले कि हाउ आई एम अप्लाइंग दी स्पेसिफिक फार्मूला। तो ये आ जाएगा cos के अंदर 4x इंटू साइन एक्स, एज यूजुअल 2 बाहर, cot को लिख दिया, इस cot x को cos x अपॉन sin x। देयर इज अ सिंपल रीजन बिहाइंड द सेम, sin x will cancelled out, और चेक करिए ये आ गया 2 cos x cos 4x, call this as second equation from 1 and 2। आप चेक कर सकते हैं दोनों के 1 and 2 इक्वल आ गए, that is simply LHS equal to RHS, hence proved। You must have observed in majority of the question what will happen, you start with LHS, after calculation you will directly get RHS, but sometimes it is possible that you may be required to solve both LHS and RHS separately, as we have done just now। So it's a simple observation and your practice, जिससे idea लग जाएगा कि how do we need to proceed for a particular question। Consider a set of these two very simple and similar questions हैं। Idea is only applying the formulas। तो चेक करते हैं हम 16th क्वेश्चन, क्लियरली 17th फिर आपका मैं होमवर्क में कर रहा हूँ। चेक आउट 16th LHS। There is a direct formula in the numerator, cos A minus cos B. What is that formula? Minus 2 sin a minus b by 2 sin a plus b by 2. Minus 2 sin A plus B by 2 into sin A minus B by 2. On my personal experience, I am telling most of the students use this particular formula wrong। इसमें वो हमेशा कंफ्यूज होते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। डिनोमिनेटर sin A माइनस sin B, 2 cos A प्लस B by 2, ये 17x आएगा, A प्लस B by 2 इंटू sin A माइनस B by 2। बस 2 से 2 कैंसल हो गया, माइनस साइन ये आ जाएगा आपका 7x और ये आ जाएगा साइन 2x ओवर कॉस में क्या बचेगा, ये 20x हो गया था बाय 2 10x, और साइन में बच गया 14 by 2 7। We have a clear observation, sin 7x cancelled out and minus sin 2x upon cos 10x, which is equals RHS। तो नीडलेस टू से अगर मुझे फार्मूला याद नहीं होता तो मैं ये पहला स्टेप नहीं कर पाता, और उसके आगे तो ऑफ कोर्स वी कैन नॉट प्रोसीड। एंड द इनवर्स रूल, इनवर्स सिचुएशन, इफ आई नो दी फार्मूला, मैंने ये सही लिख लिया, ऑब्वियसली इसके बाद तो ये सारे फिर स्टेप्स ऑटोमेटिकली फॉलो होंगे। Let's move on. We have another very set of simple questions in front of you, both in your homework.
कुछ इसमें ऐसा सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूलास को यूज किया गया है। ट्वेंटियथ, तो इट इज सिंपल, बट चलिए थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आपको प्रूव करना है। कंसिडर LHS एज ए राइट sin x माइनस sin 3x। एकदम से माइंड में आ चुका है sin a माइनस sin b। सो इन द न्यूमरेटर अप्लाई कर देते हैं sin a माइनस sin b, और वो क्या होता है? 2 sin a plus b by 2 upon sin 2 cos a plus b by 2 इंटू sin a माइनस b by 2। एक बार चेक करके बताओ, हो सकता है मैंने गलत लिखा हो। एवरीवन ओपन योर फॉर्मूला लिस्ट एंड चेक इट हाँ आउट। सर ठीक है। साइन a माइनस साइन b है ये, तो वो 2 cos a प्लस b by 2 इंटू साइन a माइनस b by 2। Look at denominator. If I take negative common, it will become cos square x पहले लिख दो and then minus sin square x। रीजन है, समझ आ जाएगा। ये हो गया cos 2x sin माइनस x आ जाएगा, and in the denominator inside the bracket, check out your formula list. It is a direct formula for cos 2x। तो बोथ द वे आपको फार्मूला की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एंड लर्न बोथ द वे। cos 2x तो हमने याद कर लिया, cos square x माइनस sin square x, बट रिवर्स में भी याद होना चाहिए कि cos square x माइनस sin square x लिखा हुआ दिखाई दिया, इट विल बिकम cos 2x। एनीवे, नेक्स्ट तो क्लियर हो चुका है। यहां से साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर लिखकर दिखा दीजिए, एंड द लास्ट स्टेप माइनस cos 2x कैंसल हो गया, माइनस से माइनस कैंसल, और ये cos से cos कैंसल, which is equal to 2 sin x as your RHS। Any doubt to anyone? Time to mark your attendance in a chat box. Only P is sufficient. Present, present sir, अपना नाम, nothing is required. Save it every second. Only write P and everyone quickly do it. Check out the next question. Now here is the repeated application of the formulas. No complication. Question is simple, but एक simple technique आपको सोचनी है। आंसर तो सिंपल आ रहा है, cot 3x, तो cot होता है cos by sin, तो मोस्ट लाइकली ये क्वेश्चन लास्ट में ऐसा कन्वर्ट होने वाला है, LHS। तो चेक करते हैं, बट बिफोर आई
Directly combine say first and second and apply cos A plus cos B. You will not be able to solve this question. Understand carefully. आपके पास 4 और 3 इनका सम ऑड है. चूज द इवन सम. इवन सम का मतलब यहाँ क्या है कि आप देखिए यहाँ 4x है और यहाँ 2x है. तो 4 + 2 6 हो गया क्योंकि फार्मूला में डिवाइड बाय 2 आने वाला है. इसीलिए रीअरेंज दी टर्म्स. फर्स्ट एंड थर्ड एक साथ लिख दीजिए. सिमिलर ऑब्जर्वेशन in the denominator, and that is the most important step of this question. Once it is written, अब आप ब्रैकेट में फॉर्मूला cos A plus cos B. What is the formula? Cos A plus cos B minus no 2 cos A plus B by 2 into cos A plus B. A minus B by 2. cos A minus B by 2 और plus cos 3x as it is in the numerator. नीचे फॉर्मूला कौन सा लगा? sin A plus sin B. 2 sin A plus B by 2 cos A minus B by sin 2. A plus B by 2 Yes. Into cos A minus B by 2. cos, यहाँ sin नहीं होता. cos A minus B by 2 और ये plus sin 3x as it is. चलिए कितना आ गया ऊपर? 2 cos 3x cos x plus cos 3x as it is. डिनोमिनेटर 2 sin 3x और ये cos x आ गया प्लस sin 3x. Note carefully from numerator cos 3x is common. ये देखिए ध्यान से, ये cos 3x कॉमन लिखते ही ब्रैकेट में we left with this. Same way in the denominator sin 3x is common. Sin 3x is common. तो 2 cos x आ गया और नेक्स्ट टर्म से +1. We have a simple observation. J और ये कैंसल. As expected, cos by sin आना था ताकि मैं इसे cot में लिख दूंगा and which is my RHS. Hence proved. अब जैसे हमारे क्वेश्चन में 3 टर्म्स थी 1, 2 and 3. You will have the question जहां ऊपर 4 टर्म्स हो. असाइनमेंट के थ्रू हम देखेंगे तो हार्डली मैटर, उसमें आपको 2-2 टर्म्स के ब्रैकेट्स बनाने होंगे और वो भी लॉजिकली सोचना होगा. इट्स नॉट ऑलवेज कि भाई पहली 2 टर्म और बाद वाली 2 टर्म मैं कंबाइन कर दूंगा. पॉसिबल हो सकता है कि फर्स्ट एंड थर्ड को एक साथ लूं, सेकंड एंड फोर्थ को एक साथ लूं. आई नीड टू चेक देयर सम, क्या वो इवन है या नहीं है, क्योंकि इवन सम लाना एक एसेंशियल स्टेप हो जाएगा. With practice again that will be more clear. So please make a note of this. Check this out.
एक कॉमन चीज इसे देखकर माइंड में क्या आती है कि LHS में tan दिया हुआ है, आई विल स्टार्ट विथ चेंजिंग इन साइन एंड कॉस और फिर सॉल्व कर लेंगे, और अदरवाइज आई विल कंसीडर RHS, साइन कॉस में चेंज करो, टेक द LCM and start simplifying. Either way you will not get this answer, but it will convert the equations into very complicated equations actually. So note carefully how I am going to start this. This is your NCERT solved example only. बहुत सिंपल रूल है. 3x क्या होता है? Can I write like this? 2x plus x. वो इन नंबर्स को, इन वैल्यूज को, एंगल को देख के डिसाइड करा, और इसके बाद टेकिंग tan बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये याद रखिए. टेकिंग tan बोथ साइड मतलब दोनों तरफ टेंजेंट लगा दिया, तो tan 3x और इधर हो जाएगा tan 2x plus x. अगर ये आपने सोच लिया इसके बाद, तो अब ये बहुत सिंपल है. RHS इज अ डायरेक्ट फार्मूला, tan A plus B. tan A plus B होता है tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B. प्लस tan B, yes, 1 minus tan A tan A tan B. into tan B. क्रॉस मल्टीप्लाई, ये tan 3x है, you just cross multiply both, and ये किसके इक्वल आ रहा था? tan 2x plus tan x. ओपन द ब्रैकेट, tan 3x माइनस, अब जब ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो आप चेक कर सकते हैं ये क्या बन जाएगा? tan x, tan 2x, tan 3x, और RHS क्या आ रहा है? tan 2x plus tan x. You just need to rearrange the terms और चेक करिए आंसर आ चुका है. Once you rearrange the terms, माइनस वाली जो टर्म है वो मान लो RHS में आ गई, तो मतलब इस, चलो tan 3x, इन दोनों को लेफ्ट साइड में ले आता हूं, और नेगेटिव वाली टर्म ये वाली RHS में आ गई. और अब ऑब्वियसली इफ A इक्वल टू B इम्प्लाई B इक्वल टू A, आप इसे पहले लिख लीजिए, और इसको चलो लिखना चाहूं आंसर की टर्म से तो पहले 3x लिख देता हूं, हार्डली मैटर. फिर लिखा था 2x और फिर था x, मल्टीप्लाई में ही तो हैं, सो आई कैन राइट इट इन एनी पॉसिबल ऑर्डर. फिर tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, which proves the result. I hope the idea is clear. First step is important कि डायरेक्ट में साइन कॉस में नहीं कर पाऊंगा, तो 3x को लिख दिया 2x plus x. In fact, in exercise we have a question related to cot, a very similar question. Again, look at the values. So do it in your homework. Basic hint बस सिर्फ यही है, ये लिख दिया, और अब की बार cot ले लिया both the sides, और फिर cot A plus B. We already have discussed the formula.
use that and cross multiply, rearrange, you will get your required answer. Complete this in your homework. Check this out. ये आपको प्रूव करना है. Consider LHS tan 4x. सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट अंडरस्टैंड केयरफुली मैं क्या कर रहा हूं. 4 को लिख दिया 2 into 2 और इफ आई Excuse me, assume sir. yes सर इसके अंदर हम RHS को नहीं सॉल्व कर सकते, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना RHS LHS से. it all depends. मुझे नहीं लगता कि मैं RHS से ये ला भी पाऊंगा आंसर, तो इसीलिए LHS से ही हमें इसे स्टार्ट करना रहेगा. रीजन, tan 2a का फार्मूला 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a होता है. अप्लाई दिस फार्मूला बाय टेकिंग 2x एज से a. एज्यूम करो तो ये tan 2a का क्या बनेगा, ये फार्मूला 2 tan a की जगह तो 2x आ गया एंड देन 1 माइनस tan स्क्वायर 2a. a और a कितना था 2x. प्लीज मेक श्योर इस स्टेप को आपने समझ लिया है, क्योंकि इसके बाद तो अब ये बहुत इजी है. सर रिपीट प्लीज. यस, आप चेक करिए, ये फार्मूला हमें पता है ना, tan 2a जो है वो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a होता है. तो अगर मैं इसमें एंगल को डबल कर देता हूं, एंगल को डबल का मतलब 2a की जगह 4a कर दिया. मैंने एंगल 2a था उसका 4a करा है डबल, तो एंगल का डबल RHS में भी करना रहेगा. ये लो मैंने एंगल का डबल कर दिया, जहां पर a लिखा था 2a कर दिया. इससे ये क्लियर है. यस सर. एंड अब a लिखूं या x लिखूं, हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस. आप a की जगह x लिख दो थ्रू आउट बोथ द साइड्स. चेक इट आउट. यही तो मैंने लिखा था tan 4x को इसके इक्वल. अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग, मुझे फॉर्मूला सिर्फ LHS से RHS में याद नहीं होने चाहिए, बोथ द वे उनको कैसे यूज करना है, दैट अंडरस्टैंडिंग, दैट विजुअलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट. I believe that all of you have arrived at this particular step, ये वाला. और अब इसके बाद क्या करना है, लुक केयरफुली. ये tan 2x है, यहां पर भी ये tan 2x है, और tan 2x का फार्मूला फिर से हमें पता है वो ऐसा होता है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, tan 2x की जगह मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2x का होल स्क्वायर है, तो ये tan 2x मैं लिख देता हूं. दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan 2x एंड इस पूरे का होल स्क्वायर. Why I am doing like this?
लुक एट द आंसर। क्वेश्चन था 4x की टर्म में, आंसर मेरा एंगल x की टर्म में लाना है, तो आई नीड टू कन्वर्ट दिस 4x इनटू x ओनली। चेक करो इस स्टेप में अभी जो मैंने जस्ट लिखा है, एक्सप्रेशन आ चुका है इन टर्म्स ऑफ x ओनली। एंगल जो है वो x की टर्म में आ चुका है। नाउ इफ दिस इज डन, इसके बाद तो कुछ ऐसा बचा ही नहीं है। आप ये ऊपर ये 4 tan x हो गया ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x आ गया, डिवाइडेड बाय, टेक द एलसीएम एंड ओपन द स्क्वायर। मैं एलसीएम ले रहा हूं तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर का स्क्वायर ओपन करो, 4 tan स्क्वायर x आ जाएगा, और होल वैल्यू किस में डिवाइड में आ रही थी, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। नथिंग न्यू, मैंने सिंपल अलजेब्रा अप्लाई किया है। टेक द एलसीएम इन अ प्रॉपर मैनर। आई एम वेटिंग, आप खुद पढ़कर समझिए इसे। वंस दिस इज डन, इसके बाद तो ये सिंपली क्या हो गया भाई, ऊपर आ गया एज इट इज था ये 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और जो नीचे ये पूरी टर्म है मल्टीप्लाई होकर इसका रेसिप्रोकल आने वाला है। चलो आई नीड स्पेस हियर, तो मैं इसका रेसिप्रोकल लिख देता हूं, और वो आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नोट केयरफुली, 1 माइनस tan स्क्वायर का एक फैक्टर कैंसल हो गया ऊपर नीचे, तो ऊपर तो बच गया 4 tan x इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर x। दिस इज a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये पहले से ही था, माइनस 4 tan स्क्वायर x, ये दोनों आ गए लाइक टर्म्स। लुक एट द आंसर जो आपको लाना था, न्यूमरेटर एग्जैक्ट मैच, इसे पहले लिख देता हूं और ये आ गया tan 4x इक्वल्स RHS, हेंस प्रूव। बाकी कैलकुलेशन तो आगे सारा कुछ एलसीएम ओपनिंग द स्क्वायर रहेगा, मेन है जो इसके पहले 2 स्टेप हुए हैं। Any doubt to anyone? Mark your attendance. Do it fast. Everyone, mark your attendance.
सक्षम, आप तो 11:04 पे आए थे क्लास में। Check out the next question. cos 4x को प्रूव करना है 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। चेक इट आउट, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। 4 को लिख दिया 2 इंटू 2, और cos 2a के we know many formulas, cos square x minus sin square x, or this is also 2 cos square x minus 1, this is also 1 minus 2 sin square x, this is also 1 minus 2 sin square a. yeah, and then finally this one. So cos 2a के क्विक फार्मूलाज हमें पता है, ये 4 है। This is my a. अब which formula I should apply? Which formula? first one. Anyone? No, it's not the first one. Look at the answer carefully. Last one. 1 माइनस इस फार्मूला से मिलेगा। सोचिए भाई ध्यान से, आंसर भी तो मुझे माइंड में रखना है कि किस तरह का लाना है एक्सप्रेशन। 1 माइनस और वो इस फार्मूला से आ रहा है, तो इसीलिए आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर फार्मूला। तो लगाइए क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 2 sin square 2a, साइन स्क्वायर a, और a की जगह इट इज 2x। चेक इट आउट, a हमारा 2x हो गया था, और साइन 2x का होल स्क्वायर है। साइन 2x होता है 2 साइन x cos x। ओपन द स्क्वायर, open the bracket, and your required answer. Formulas याद है, अंडरस्टैंडिंग है, स्पेसिफिक विच फॉर्मूला आई नीड टू अप्लाई, तब तो इजी हैं ये क्वेश्चंस। अदरवाइज यू विल स्टक इवन एट अ वेरी फर्स्ट स्टेप। So please make a note of it. Practice will only help you कि किस तरह से we are going to handle similar questions also. आप नोट कर लीजिए, I am waiting. And now we have 4 minutes break. It's 11:21. We will resume the class at 11:25. So you may relax for next 4 minutes. But be in the class only.
Okay, let's resume the class. Check it out. Let us prove this result. Again, cos 6x है और उसे cos x की टर्म में स्प्लिट करना है. So there may be more than one way possible. So let me begin with LHS. RHS से तो कर ही नहीं पाएंगे, ये आइडिया आपको क्लियर होना चाहिए. Now there are two ways. 6 को मैं लिख सकता हूं 2 into 3 और I can write this as 3 into 2. I do have the formulas for both cos 2a या कहूं cos 3a. The choice is yours. You can apply any one of them. So check it out. Cos 2a का फॉर्मूला, बट याद रखो आंसर मुझे सिर्फ cos की टर्म में चाहिए. 2 cos square a minus 1. 4 फार्मूलाज होते हैं. I will then use this. और अगर मैं cos 3a वाले एक्सप्रेशन का चाहता, anyone? What is the formula for cos 3a? Four cos cube minus 3 cos. Good. This is the formula for cos 3a. तो अब मेरी चॉइस है, मैं किसी भी फार्मूला को यूज कर सकता हूं. लेट मी से आई एम यूजिंग द फर्स्ट एक्सप्रेशन. तो ये वाला पार्ट डू इन होमवर्क कि इससे कैसे प्रूव हो रहा है. लेट मी प्रूव इट यूजिंग दिस ऑप्शन. cos 2a का फार्मूला लगा रहा हूं, वो क्या हो जाएगा 2 cos square a एंड देन माइनस 1. बट अल्टीमेटली फिर से सोचिए, ये आ गया cos 3x का होल स्क्वायर. सो व्हाट इज cos 3x? cos 3x होता है 4 cos cube x यहां से minus 3 cos x and then minus 1. Finally, it is a minus b का होल स्क्वायर which is a स्क्वायर, पहली टर्म का स्क्वायर कर दिया, प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. So this is your class 8th का फॉर्मूला लगाया सिंपली a minus b का होल स्क्वायर. ओपन द ब्रैकेट. So could you re-explain from fourth step? ये वाला, ये स्टेप. Yes, sir. cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने सिर्फ वो यूज किया है. cos 3x है, वो यहां से आप सोचिए ये लिखा जाएगा. दिस इज द फॉर्मूला, हाईलाइटेड वन. सिंपली इसको फोकस करो, cos 3x. Yes, sir. और Got it, sir. फिर इट इज a माइनस b का होल स्क्वायर. a माइनस b का होल स्क्वायर मैंने इसे माना है a और ये हो गया b. तो a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. बस ये फॉर्मूला लगा दीजिए एंड फाइनली ओपन द ब्रैकेट. आप चेक करिए सारी सेम टर्म्स आ चुकी हैं. जस्ट दैट कि माइनस 48 इन्होंने पहले लिखा है, तो आप पहले लिख दीजिए. हेंस प्रूव.
I hope the idea is clear. Now let's consider a few more solved examples from NCERT. You have to prove this result. ये तो क्लियर है कि चलिए मैं LHS से ही स्टार्ट करूंगा, बट what should be my first step? I do not have any formula for this कि ये इसको cos A पूरे को कह दूं माइनस सेकेंड टर्म को cos B, वो तो है ही नहीं है. The most important step of this question to say multiply and divide throughout. Why? Check it out. 2 cos A cos B. Can anyone help me out? What is the formula? चार फार्मूलाज का सेट बताया है, उसमें ये आपके थर्ड नंबर पर होना चाहिए. What is 2 cos A cos B? Cos A plus B plus cos A minus B. Yes, good. Check it out. ये फार्मूला आप चेक कर सकते हैं. इट्स इन योर फार्मूला लिस्ट इटसेल्फ. अब मैंने ये 2 cos A cos B में कन्वर्ट कर दिया. What does that mean? ये तो हाफ एज बाहर ही रहेगा. लगाइए जरा पहली टर्म में फार्मूला. 2 cos A cos B क्या बना दिया मैंने? cos A 2x plus x by B plus cos 2x minus x by 2. I hope the idea is clear. ये तो रहा फर्स्ट टर्म. माइनस फिर से वही चीज आ गई. 2 cos A cos B which is क्या हो जाएगा? cos A plus B plus cos A minus B. ये ब्रैकेट क्लोज क्योंकि ये बाहर 1/2 है थ्रू आउट. तो टेक्निक बेस्ड क्वेश्चन पहला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टू माय नॉलेज उसके अलावा शायद आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे. कोई और मेथड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. इफ यू कम अक्रॉस डू लेट मी नो. सो हाफ बाहर, और अब ये सिंपल हो गया ना. ये एलसीएम लगाओ जरा, कितना हो गया ये? 5x/2. ये कितना आ गया? 3x/2. नेक्स्ट टर्म माइनस के साथ कितना आएगा? और फिर माइनस के साथ क्या आ जाएगा? ये प्लस माइनस 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 3x/2 आएगा. बट याद रखिए cos माइनस थीटा तो cos थीटा हो जाता है. so that ये cos 3x से cos 3x कैंसल, 3x/2 वाली टर्म कैंसल, और अब आपके पास सिर्फ बच चुका है ये हाफ में ब्रैकेट में. अब एक बार फिर से ध्यान से देखिए. इट इज नथिंग बट cos A minus cos B. So cos A minus cos B. What is the formula? Minus 2 sin A plus B by 2 sin A minus B by 2. Apply this formula or you will have your answer.
तो चेक इट आउट, -2 sin A plus B by 2 into sin A minus B by 2। चेक करिए, अभी तक क्वेश्चन मेरा थ्रू आउट कॉस में चल रहा था स्टार्टिंग से, और आंसर था साइन की टर्म में। तो लग रहा था कि वो तो नहीं आ पाया, बट लुक एट द लास्ट स्टेप, माय आंसर इज इन टर्म्स ऑफ साइन ओनली। टेक द LCM, सिंप्लीफाई, you will get your required answer, which is RHS। बहुत इजी है, ऑब्जर्व आप कर सकते हैं अब इस चीज को। Any doubt to anyone? Find the value of tan pi by 8. For this question, I will consider a list of few more formulas जो आपको लॉजिकली समझने हैं। देखिए वो कैसे। बहुत स्टार्टिंग का सिंपल फॉर्मूला हमें पता है, sin 2x होता है 2 sin x cos x। You do half of the angle, both the sides। इससे sin x कितना आ जाएगा? एंगल को हाफ करा है, एंगल को हाफ किया है। न्यूमेरिकल वैल्यू एज इट इज, ये 2 तो एज इट इज रहेगा, और फिर एंगल को हाफ कर दीजिए। So in fact, this is the way how we can get the half angle formulas. This is specifically known as half angle formula. Similarly, consider the formula for cos 2x. Cos square x minus sin square x, 2 cos square x minus 1। और भी होते हैं ना, क्या होते हैं फॉर्मूला? 1 minus 2 sin square x और 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x। ऑलरेडी मैं अभी ही इस फॉर्मूला को 2 बार लिख चुका हूं, बट रिपीटेडली लिख रहा हूं ताकि याद रहे आपको ये सब चीजें। नाउ आप एंगल का हाफ कर दीजिए, मतलब इस 2x का हाफ कर दो थ्रू आउट। तो एंगल का हाफ करते चलिए, तो x की जगह x by 2 हो जाएगा। ओ सॉरी, यहां साइन स्क्वायर आएगा, जस्ट हाफ द एंगल। मैंने इस फॉर्मूला में x को x by 2 रख दिया। फोकस ऑन दिस। इसमें जरा अगर मैं एंगल को हाफ करूं, 2 cos स्क्वायर, एंगल सिर्फ हो जाएगा x by 2। सिमिलरली थर्ड वाला फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, 1 minus 2 sin स्क्वायर, बस एंगल को हाफ कर दीजिए। एंड फोर्थ वाला 1 minus tan स्क्वायर x by 2 अपॉन
1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाय 2। और फिर सोचिए tan 2x का फॉर्मूला क्या था? 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। एंगल का हाफ कर दो, तो tan x सिर्फ एंगल का हाफ कर रहे हैं, तो 2 tan x बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan square x by 2. So I will get the formula for tan x. Also, आप चेक करिए cos 2x के फार्मूला को। इस cos 2x के फार्मूला से मैंने क्या एक और फार्मूला डराइव किया था, फर्स्ट एंड थर्ड को जरा कंपेयर करना। ये रीअरेंज किया, cos स्क्वायर x कितना आ गया? 1 प्लस cos 2x बाय 2, और cos x का फॉर्मूला याद करिए, रूट लगा दिया इसका, 1 प्लस cos 2x बाय 2। अब अगर ये cos x का फॉर्मूला है, तो फ्रॉम दिस आई कैन से cos x बाय 2 क्या बन जाएगा? एंगल का हाफ कर दो, 1 प्लस एंगल 2x का हाफ हो जाएगा x ओनली। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डिडक्शन जो एक्सपेक्टेड है कि आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। प्रूफ तो मैं कर सकता हूं जैसे मैंने ऊपर से सारा चला हूं, बट यू शुड लर्न दिस डायरेक्टली। सिमिलरली आप अपने आप देख लेना, साइन x बाय 2 हो जाएगा प्लस माइनस, यहां बीच में सिर्फ माइनस का चेंज हो जाता है, लाइक दिस। लेट मी हाईलाइट दिस, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं आपको ये याद करना है डायरेक्ट इस फॉर्म में। इन्हें एज अ सेपरेट फॉर्मूला लिख लीजिए। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, साइन x बाय 2 अपॉन कॉस x बाय 2, tan x बाय 2, और सोचिए ध्यान से वो प्लस माइनस में आप इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करके देख लीजिए, 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, एंड फाइनली आई हैव द फॉर्मूला फॉर tan x बाय 2। दिस इज द फॉर्मूला जो मुझे एक्चुअल में इस क्वेश्चन में यूज करना है। इफ यू लुक एट NCERT, they have given another solution to this question, which is little tricky and calculative. I am using a very simple and smart approach, provided मुझे ये फार्मूला याद है tan x बाय 2 का। अब आप जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं हाफ एंगल के जो मैंने मेन फॉर्मूला लिस्ट में अलग से नहीं बताए, बट दे विल बी यूज्ड नाउ ऑन थ्रू आउट। इफ यू लुक एट द एंगल पाई बाय 8, इट इज नॉट माई स्टैंडर्ड एंगल, बट ये अगर आप ध्यान से देखें, मैं इस एंगल की जगह अगर x को कह देता पाई बाय 4, x बाय 2 कितना हो जाता?
इसका हाफ करो, π/8। π/8, ये एंगल आ गया, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं दोनों तरफ tan ले लेता हूं तो tan π/8 किसके इक्वल आ जाएगा? सोच के देखिए, tan x/2 के इक्वल। और tan x/2 का फार्मूला ये होता है, याद रखिए π/8 जो है 22 1/2 है, 22.5 डिग्रीज होगा, 45 डिग्रीज का हाफ ही तो हो रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे आंसर पॉजिटिव होते हैं। x कितना था? π/4। replace the value of x by π/4 और you have your answer। बस अब तो आपको यहाँ ये x π/8 है, x/2 नहीं लिख रहा, π/8 मैं कर चुका हूँ इसे। एक्सक्यूज मी सर। यस सर वो आपने माइनस साइन क्यों हटा दिया? we are talking about the angle of π/8। π/8 कितना होता है? फर्स्ट It is क्वाड्रेंट। 22.5 डिग्रीज। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में all t ratios are positive। ओके सर, ठीक। तो बस अब आप क्या करेंगे, cos π/4 1/√2 हो गया। use this value, take the LCM inside the root, rationalize कर दीजिए inside the root also। तो √2 -1 से रैशनलाइज हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा? √2 - 1/1, your required answer। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो सिर्फ ये 4 लाइनें थी, बाकी सब तो मैंने आपको फॉर्मूला डराइव करके दिखाया है। राइट साइड के जो 2 आपके कॉलम्स हैं, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज इनफैक्ट जो मैंने यहाँ डराइव करवाए हैं, हाइलाइटेड फार्मूलाज को अलग से लिख लीजिए। और हाफ एंगल कैसे मैंने फार्मूला चेंज किया है, ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। I'm going to end the class in next 1 minute. Check it out if you have any doubt. आसान नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री है, you need a lot of understanding and practice। तो इसीलिए कोई उसके लिए बेटर सॉल्यूशन नहीं है लिखकर याद करने फार्मूलाज, और याद करने से भी काम नहीं चलता है unless you know the ways how you are to apply those formulas। किस सिचुएशन में कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, that is the technique you need to learn। और वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही बनती है, not just by reading like a literature। तो give the ample practice to trigonometry, very very important throughout। बार बार बोल रहा हूँ, 11th हो या 12th हो, it cannot be ignored at all। Question for your homework। अच्छा ये अभी मैंने नहीं, ये नहीं अभी आप कर पाएंगे हाफ एंगल वाले। यस, एनसीईआरटी मिसलेनियस में से अब आपका होमवर्क बनेगा फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। दैट्स इट। तो मैं अलग से स्लाइड में भेज देता हूं। तो मिसलेनियस विल बी अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क नाउ।
चलिए, mark your attendance once again, finally, and then you can leave the class. Have a good day. Mark your attendance quickly. Thank you, sir. Bye. Okay, welcome. Sir, Yes. sir, will you follow the CBSE syllabus or you will take? ट्रिग्नोमेट्री उन्होंने सेकंड टर्म में लिया है, हम फर्स्ट में ही लेंगे. बाकी सारा कुछ सीबीएसई के अकॉर्डिंगली ही फॉलो हो रहा है. Okay, sir. या